and today we are gearing up for an action-packed schedule. Today, to kickstart our day, we have a startup masterclass with Dr. Vijendra on how to build a startup and its legal and ethical steps. Dr. Vijendra, a renowned alumnus of NIT Hamirpur and IIT Delhi, specializing in cryogenic technology with a PhD in mechanical engineering. He began his career as a defense scientist at DRDO, later teaching at IIT Bombay. Currently, he leads multiple companies including an edtech firm and a media company, focusing on academic profiling. Dr. Vijendra is a mentor to thousands of students, guiding them globally in career opportunities, especially during the pandemic. Let's welcome Dr. Vijendra on the stage as he shares his valuable insights with us. Sir, the stage is yours. Am I audible, friends? Yes. Okay, so very good morning to all of you, and I believe this house is full of people who are either entrepreneurs or they want to become entrepreneurs, right? See, this is better, right? Okay, so friends, I am given 1 hour for this session, and try to sum it up in 45 minutes, and then I would like to take the questions from you, and it is going to be quite interesting. It is my favorite topic, entrepreneurship. I'm a mentor also, I'm a teacher also, I'm a professor also, and I keep on going for these kind of sessions, but the best session is entrepreneurial session. Why? Because not everybody can become entrepreneur. You know, the topic given to me today is to tell how startups are to be created and what are the ethical and legal issues of the startups. लेकिन मैं 2-3 मिनट लूँगा ये डिस्कस करने के लिए कि कौन बन सकता है entrepreneur. I strongly believe, friends, not everybody can become entrepreneur. Entrepreneurs are born or they can be made also. That is a very big debate. जैसे leaders का होता है ना कि can leaders be made or leaders are born. कि क्या तुम्हारे अंदर वो genetic makeup होना चाहिए या तुम environmentally भी बनाए जा सकते हो. Suppose in a B school I start a very good course of entrepreneurship and one person comes and I make him entrepreneur. तो can that be done? Or you are born with entrepreneurial traits. ये बहुत बड़ा एक डिबेट है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ट्रेड्स जरूर शेयर करूंगा. Over the period of time, these my 10-15 years of journey, I have realized that yes, there are certain traits of entrepreneurs. आप में वो हैं या नहीं है, that you can analyze and then you can proceed in that particular direction. I really don't know how many of you have already decided to be in entrepreneurship, how many you are already entrepreneur. तो मैं अपना जो presentation रखूंगा, because it is a college, I am presenting it in the college, not 5 to 10 years people who are already into entrepreneurship. आप लोग budding हो, मेरे को लगता है, fresh entrepreneurs हो या 2-3 साल का experience होगा आपको. I'll handle accordingly. Friends, as I told you, entrepreneurship is not a choice of career. ये करियर का चॉइस नहीं है. ये ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को जॉब करना है या मेरे को अपना फैमिली बिजनेस चलाना है, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है. ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. आप अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो आपका रास्ता वैसा बनता चला जाएगा. यू विल कीप ऑन लिविंग द बेस्ट थिंग्स एंड यू विल बिकम वन डे द एंटरप्रेन्योर. वो ऐसा होगा आपके साथ. मेरे साथ वैसा ही हुआ. I was born in a very conventional, traditional family of school teachers. Both my parents are school teachers, government job school teachers. Father mathematics and mother English teachers. All my family is a government-oriented people, entire government-oriented people. In my entire journey, only my grandfather tried in entrepreneurship, but he failed like anything. And he was given as an example in the family कि देखो business कभी नहीं चलाना चाहिए, कभी नहीं चलता. And never you should try. And आपके दादा ने ऐसा किया और problem हुई, उनको ये issue हुआ. I was born up like that, right? And you know, I did my engineering conventionally, typically Indian stuff. If you're good in maths, if you're good in physics, go for engineering, go for IITs. Get a very good job. ये सारा करता चला गया. Job ली, government job ली, first gazetted officer. My father is very happy. Okay, settle हो गया, काम सब सही हो गया. फिर real stuff started. यहाँ तक था कि शायद ये ही रास्ता है और वो करता चला गया मैं. क्योंकि मैं वैसे उस फैमिली में बना था. So I kept on doing that and the first job which I got was a DRDO job. उस टाइम पे कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो he was the president of India that time and he was a DRDO scientist, ex-scientist, and that was one of the reason I took it as a job. Other job was Infosys, but I took it DRDO as a government job. Why? Parents government job में parents उस चीज को अच्छा मानते हैं. जब आप पेरेंट्स को बोलोगे मेरे पास Infosys का जॉब है, मेरे पास DRDO का जॉब है, बोलेगा अच्छा DRDO का जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी बात है.
सो ये चीज जब देखता है बच्चा तो वैसा करने की ट्राई करता है. सो वी आर बेसिकली स्लेव्स टू द रिफ्लेक्टेड अप्रेजल. जिस चीज से हमें प्रेज मिलता है हम उस चीज को करने की ट्राई करते हैं. पूरी फैमिली पेरेंट्स आपका प्रेज करेंगे तो आप उस तरफ जाओगे. दैट इज व्हाट आई डिड. And when I joined the job, I started realizing that I'm not getting the kick, I'm not getting the satisfaction, I'm not getting what I want actually. Frustration में आना start हो गया काम. मुझे पता नहीं चल रहा frustration क्यों. सब कुछ जो गवर्नमेंट जॉब में मिल सकता है तुम्हें वो था. I mean फ्लैट था, टाइप 4 अकोमोडेशन देहरादून में एंड बहुत अच्छी लैब, वेल डेवलप्ड लैब, क्रायोजेनिक्स का काम है. और मैं ऑलरेडी मास्टर्स करके गया था तो डायरेक्टर वाज वेरी ग्रेशियस टू मी. एंड लॉट ऑफ फंडिंग फॉर रिसर्च. डिफेंस है, आप जानते हो डिफेंस की फंडिंग की कोई लिमिट नहीं है. डिफेंस साइंटिस्ट के पास कितना फंडिंग आता है. सो बट आई वाज नॉट हैप्पी फ्रेंड्स. और फिर मैंने एक चीज लाइफ की पहली लर्न की कि अगर आप एक कन्वेंशनल फैमिली से हो तो अगर आपको अच्छी जॉब लेना ट्रबल है ना तो उसको छोड़ना और भी बड़ा ट्रबल है. आप उसको छोड़ नहीं सकते फिर, क्योंकि जब आपने अपना इंटरेस्ट शो किया कि आई वांट टू लीव द जॉब तो एंटायर फैमिली विल पाउंस अपॉन यू. नहीं, तू नहीं छोड़ सकता. ये जॉब सेफ होती है, नहीं होता तुम नहीं कर सकते. That was the first thing I realized. एंटरप्रेन्योर की पहली जो ट्रेट है मेरे को उस दिन पता चला कि आपको बोल्ड होना पड़ता है, आपको रिबेलियस होना पड़ता है. थ्रू आउट माई करियर फ्रेंड्स आई हैव बीन एकेडमिकली वेरी गुड. लाइक जितने नंबर चाहिए उतने नंबर आ रहे हैं, सब आ रहा है. तो ऐसा बच्चा होता है जो पेरेंट्स की सुनता है तभी आता है ऐसा. एंड आई हैव बीन लाइक दैट. पहला रिबेलियस में तब हुआ जब मैंने बोला नहीं करनी मेरे को जॉब. एंड दैट वाज द फर्स्ट रिबेलियन आई हैड. व्हाई? बिकॉज आई वाज नॉट एडजस्टिंग टू दैट कि ऐसे कैसे हो रहा है. और सडनली उनको लगता है कि ये इतना अच्छा हमारा स्टूडेंट है, बच्चा है जो सारी बातें सुनता है, अच्छे नंबर लेता है और अचानक बोल रहा है मेरे को जॉब नहीं करनी. क्या पागल हो गया या क्या इसका दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया. सो पहला ट्रेट एंटरप्रेन्योर का आपको रिबेलियस होना पड़ता है, किसी और के साथ नहीं, शायद आपके सबसे क्लोज लोगों के साथ विच आर योर पेरेंट्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली. जो और चीजों में नहीं होता. अदर डे समबडी वाज आस्किंग मी सर एक आईएएस का और एक एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स क्या होते हैं. ये पहला ट्रेड डिफरेंस होता है दोनों के अंदर कि अगर आप अपनी सोसाइटी के हिसाब से चलते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल फॉलो करके चलते हो, जो लोग चाहते हैं उस सिस्टम के अंदर चलते हो तो आप ब्यूरोक्रेट बनते हो, आप जाते हो उसमें, आप सक्सेसफुल होते हो. लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करने की ट्राई करते हो कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आई वांट टू चेंज माय इकोसिस्टम, माय एनवायरनमेंट, तो आप एंटरप्रेन्योर होते हो. तो पहला ट्रेड आपको रिबेलियस होना पड़ता है. अब आगे की स्टोरी. फिर मेरे को लगा कि नहीं अब ये कैसे निकलना है. फिर मैंने निकलने का रास्ता ढूंढा. जॉब छोड़ नहीं सकता था, मैंने एक और जॉब पकड़ी उससे अच्छी. दैट वाज यूपीएससी की जॉब जो होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हमारा एक एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है. फिर आई कन्विंस माय फादर कि आई हैव अ जॉब नाउ, यूपीएससी आई कैन लीव इट. माय फादर सेड ओके आई थिंक ही हैज अ जॉब, ही कैन लीव इट नाउ. आई लेफ्ट इट एंड यूपीएससी यूज्ड टू गिव यू ऑप्शन कि आप अगर चाहो तो ज्वाइनिंग एक साल डिले भी कर सकते हो सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अनदर एग्जाम ऑफ यूपीएससी. तो आई टुक ज्वाइनिंग, आई लेफ्ट डीआरडीओ, आई टुक अ बेसिकली जॉब, told my father I am leaving and I took a job and I left it. And in the meantime I joined General Electrical which was in Bangalore company, very big American company. Just to know, अब मेरी दो तरफ से लड़ाई चल रही है, एक अपने साथ चल रही है, घर वालों के साथ चल रही है. अपने साथ लड़ाई ये चल रही है कि यार मेरे को ये थोड़ी था मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है. मेरे को लगा शायद मेरे को डीआरडीओ की जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट जॉब है, आई डोंट वांट टू डू इट. चलो अमेरिकन कंपनी में चलते हैं. अमेरिकन कंपनी पेड मी 5 times. DRDO was giving long back 12,500 rupees gazetted one class 1 officer. And that General Electrical was paying me 65,000. So it was huge. मेरे को लगा शायद अब ये मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो जैसे जीई के ऑफिस में आप गए, 5 स्टार जैसा पूरा आपको ऐसा लगता है, 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज होती हैं उन लोगों की, सब कुछ वैसा है, सैलरी बहुत अच्छी है, लोग आपको बहुत ही वेलकमिंग है. मेरे को लगा शायद यार सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली वहाँ 2 महीने में भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. डीआरडीओ तो फिर मेरे को 2 साल झेल गया. वहाँ पे मेरे को 2 महीने में भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगा. एंड आई फेल्ट इट इज वेरी सफोकेटिंग. दिस आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. मेरे को जो बता रहा है मेरा बॉस ये कर ले, इसका पर्पस मेरे को समझ नहीं आ रहा है. दैट वाज फिर मैं अपने साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ. उसमें मेरे फादर नहीं है, ही इज नॉट इवन नोइंग व्हाट आई एम डूइंग. बट मेरे को लगा नहीं, नॉट दिस. डीआरडीओ चला गया. अब ये अमेरिकन जॉब भी चलेगी, दूसरी चलेगी. मेरे को अब नो व्हाट. फिर मेरे को लगा शायद आई एम मेंट फॉर समथिंग एल्स. आई टॉक टू माय प्रोफेसर इन आईटी दिल्ली, प्रोफेसर पीवी राव. ही इज प्रेजेंटली द Dean of IT Delhi only. I said, sir, this is what is happening to me, because I was looking for some mentor जो मेरे को एडवाइस करे कि भाई हो क्या रहा है, किससे बात करोगे बताओ. ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में आती है बात किससे करते हो. आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, पेरेंट्स के साथ तुम्हारा क्लैश चल रहा है. आप और किसी फ्रेंड से बात करते हो जो आपका आंसर दे नहीं पाता, क्योंकि उनके भी होता है पता नहीं भाई तू देख ले ये तो बड़ी अच्छी नौकरी है यार, क्यों छोड़ रहा है यार. उनके साथ ऐसे आंसर आते हैं, आपको आंसर नहीं मिला. प्रोफेसर सेड, Vijendra, maybe you tried teaching, maybe you are meant for that particular thing. I said, yes sir, I think that is because you are all parents, sisters, they are teachers, maybe you belong to family of teachers, you try that. I said, how do I do that? Maybe you join
PhD and then you will become teacher in IT system and that is how you will go. I thought maybe that makes sense. I joined PhD. I completed PhD in report 2.5 years. I completed it and I got a first job in IIT Bombay as a teacher. IIT Bombay की story, when I joined there, they told me to teach material science. Many of you will not be knowing. Mechanical engineering अगर एक 100% कोई pie chart है, तो material science उसका 5% है. And I said, I cannot live my entire 30 years of life in material science. How can I do that? I would like to be in thermal, design, so many domains, not in material science. So no, all these domains are already fixed with the senior professors. You cannot take this design. You cannot take industrial engineering. Already that professor is into that. Take material science and be happy. No, nothing doing. I can't do that. Hardly a couple of days left IIT Bombay. I did not get satisfaction in that. Then I told my father, my mentor, my professor that I am not getting satisfaction in this. Also conventional teaching also. Teaching I am enjoying, but not conventional teaching. So what do you want to do? In the meantime मैंने क्या किया था, जब मैं IIT दिल्ली से PhD कर रहा था तो मेरा एक दोस्त था जो रेलवेज में था, उसने जॉब छोड़ के कुछ स्टार्टअप किया हुआ था. उसने मेरे को हेल्प के लिए बोला कि कुछ दिन तो ऐसा करके देख, कुछ मेंटरिंग कर, स्टूडेंट्स को गाइड कर, सो दैट उनको कुछ आइडिया लगे. मैंने कुछ टाइम के लिए 45 डेज के लिए मैंने निटी बॉम्बे में भी, अब उसका नाम है IIM मुंबई, बना है इस साल, बना है नया IIM मुंबई, उसका नाम होता है निटी बॉम्बे, इसी साल बना है वो. मैंने उसके बच्चों के लिए मेंटरिंग किया. एक एग्जाम होता है हमारा इंजीनियरिंग में, वो गेट एग्जाम होता है, उसके थ्रू बच्चे जाते हैं. आई mentored them 80% students got selected in that particular thing through my counseling and guidance and mentoring. I was mentoring them. मेरे को लगा शायद ये मेरी स्ट्रेंथ है यार, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि काउंसलिंग, गाइडेंस, ट्रेमेंडस नॉलेज एंड गिविंग इट टू द स्टूडेंट्स, that is the basically I think my strength, and that is how I can go for it. And that was the time I opened my first company in 2009-10. First company for mentoring, guidance and all these things. That is how my entrepreneurial journey started. अब इस सारी स्टोरी के पीछे 2-3 लेसन्स हैं फ्रेंड्स. पहला, हमारा आज का जो डिस्कशन है वो ये कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स कैसे करें, कैसे आइडिया लगेगा, किस तरीके से हम करें. फ्रेंड्स, आइडिया आपको बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत एफर्ट के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद लगता है. ऐसे तुम्हें नहीं लगता. आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है. शायद आइडिया आपके आसपास जो इशू चल रहा है उसी से आपको निकलेगा. शायद एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से आपको आइडिया पता लगेगा. आपकी बुक्स पढ़ के, जर्नल पढ़ के, मैगजीन पढ़ के, लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में, उससे आइडिया नहीं लगता. क्योंकि जब तक कोई आइडिया न्यूज़पेपर में छप जाता है तब तक वो आइडिया पुराना हो चुका होता है. जब आइडिया नया होता है वो कहीं नहीं छपा होता. जब वो छप गया, जब किसी की स्टोरी आ गई, तुम बोले अरे यार इसने तो ये किया, मेरे को भी ऐसा करना है, तब तक वो आइडिया पुराना हो गया, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते. तो दैट आइडिया इज क्वाइट ओल्ड. तो पहला जो सिचुएशन होती है वो आइडिएशन से होती है और वो लाइफ में इस तरीके से आइडिया चलता है. दूसरी चीज, आपको फेलियर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है. इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं, मैंने आपको बोला था मैं आपको कुछ ट्रेड्स डिस्कस करूंगा जो एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए. पहला था आपको रिबेलियस होना पड़ता है. दूसरा है आपको फ्रेंड्स बहुत कंप्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. आपको बेस्ट चीज छोड़ देनी पड़ती है अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए. अच्छा सर, अगर हम बेस्ट चीज छोड़ दें तो क्या हमें उससे अच्छी कोई चीज मिल जाएगी? ये एक टिपिकल ह्यूमन मेंटालिटी का क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर का. नहीं सर, अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या मेरे को इससे अच्छी चीज मिल जाएगी? मैं रिस्क भी लूं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाऊं तो क्या मेरा कुछ बन जाएगा? ज्यादा चांस है कुछ नहीं बनेगा. आर यू स्टिल रेडी? आर यू स्टिल रेडी टू प्ले वेरी रिस्की गेम? इफ दैट इज यस, देन यू आर एंटरप्रेन्योर. अदरवाइज टिपिकल मेंटालिटी क्या होती है? जो यही सोच है, तू आज छोड़ देगा, कल को मिले ना मिले तो फिर करेगा क्या? ये टिपिकल सोच है, रिस्क ओरिएंटेड. और मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया नॉट एवरीबडी कैन बी एंटरप्रेन्योर, नॉट एवरीबडी कैन बी, आई मीन गॉड हैज क्रिएटेड दैट वे. हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा नहीं चलेगी दुनिया. कुछ ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो 1% से ज्यादा नहीं होते. उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है. तो हाई रिस्क जोन है, ये बहुत हाई रिस्क जोन है. क्या रिस्क को कम किया जा सकता है? आंसर है हाँ, कम किया जा सकता है. उसके पूरे तरीके हैं कम करने के, वो मैं डिस्कस करूंगा. बट क्या रिस्की है? बहुत ज्यादा रिस्की है. तो जब तुम कोई चीज छोड़ देते हो तो उसके पास उस टाइम पे दिमाग में आएगा कि क्या मेरे को अच्छा कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा. उस टाइम एक चीज तुम्हें बचाती है, वो तुम्हारा इंटरेस्ट एंड पैशन होता है, और कुछ नहीं बचाता. क्या इस पूरी जर्नी में तुम्हारे साथ कोई होता है? कोई नहीं होता. आपकी पूरी जर्नी में आप फ्रेंड्स अकेले होते हो, आपके दोस्त नहीं होते. इनफैक्ट आपके दोस्त अगर उनको पार्टनर बना लिए वो दुश्मन बन जाते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा. और आपके जो क्लोज जो पेरेंट्स हैं वो आपका साथ इसलिए नहीं देते बिकॉज उन्होंने बोला था आपको मत करो, आपने उनकी बात नहीं सुनी, वो आपका साथ छोड़ जाएंगे. I'll not talk about the married people. I don't think anybody is married here. But yes, if you go in that league and if you're married, even at one point of time, your kids and your wife will also not support you. Though they take care of you, though they are good for you, but why they will not support you? There are reasons for that.
As an entrepreneur, you will not take care of health. As an entrepreneur, you will not take care of anything. You will not have time, and in the beginning, you will not have even money. तो वाइफ को अगर तुम टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, तुम पैसा भी नहीं दे पा रहे हो, obviously she will not take care of you. और किड्स के साथ अगर तुम टाइम स्पेंड नहीं करोगे ना फ्रेंड्स, 5-7 साल के बाद they will not even start enjoy. They will not even enjoy your company. One day you will find you are back home and your kid doesn't want to play with you. So वो भी चला जाता है. Lot of compromises इसमें रहते हैं. मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ. और ये आपको एक और चीज के लिए तैयार होना पड़ता है. फिर क्वेश्चन ये आएगा कि सर फिर करना क्यों? इसमें तो आप सारे नेगेटिव भी बता रहे हो, करना क्यों? मैं बता चुका तुम्हें, ये तुम्हारे हाथ में नहीं होता कि वन डे यू डिसाइडेड मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना और तुमने बनना स्टार्ट कर दिया. एक्चुअली अगर तुम हो तो तुम बनोगे. वो क्या चीज है जो एंटरप्रेन्योर को ड्राइव करती है, ये बताओ. वो है फ्रेंड्स उसका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बिलीफ, कॉन्फिडेंस कि मैं जो कर रहा हूं ना वो वर्क कर जाएगा. और अगर ये वर्क कर गया तो मैं पहला इंसान हूंगा जो ये वर्क कर जाएगा. दैट किक यू कैन नॉट एक्सपीरियंस अदरवाइज. दैट किक ओनली यू कैन एक्सपीरियंस कि जो मैं काम कर रहा हूं ना ये हो जाएगा. ये फ्रेंड्स और किसी को आइडिया नहीं होता, ये ओनली तुम्हें पता होता है कि हाँ ये हो जाएगा. जो आपके साथ होते हैं ना बहुत क्लोज, उनको भी नहीं लगता कि ये हो जाएगा. आपको लगता है ये हो जाएगा. वही कॉन्फिडेंस, वही कमिटमेंट आपको आगे लेके जाती है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम बहुत क्लोज हो. एडिसन ने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था और जब 1000वां एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने बल्ब इन्वेंट किया था, उससे पूछा गया कि पहले और लास्ट एक्सपेरिमेंट में जब तू सक्सेसफुल हो गया तो तेरे को क्या लग रहा था? जब पहली बार कर रहा था तेरे को लग रहा था नहीं होगा और लास्ट टाइम लग रहा था हो जाएगा. देन एडिसन सेज, कैन यू बिलीव, जब मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को लग रहा था हो जाएगा, और जब लास्ट बार किया तो मेरे को नहीं लग रहा था हो जाएगा. दैट मींस वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा. आपको 100% कॉन्फिडेंस होता है कि आपका हो जाएगा, लेकिन लेवल आपको वही है, कॉन्फिडेंस तो नहीं है, मेहनत तो नहीं है. लेकिन विद पैस ऑफ टाइम जब तुम करते हो नहीं होता, करते हो नहीं होता, करते हो नहीं होते, तो एक चीज आती है, होता है एक्स फैक्टर, जिसको इंडिया में किस्मत बोलते हैं. जिसको इंडिया में किस्मत बोलते हैं. क्या किस्मत है? आंसर यस है, एग्जैक्टली है. लेकिन नो बस पे बेस्ट पार्ट आपको नहीं पता क्या है. आपको नहीं पता आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है. आपकी किस्मत में अगर 10 बार फेल होके 11वीं बार ब्लॉकबस्टर करना लिखा है ना कि बहुत हिट करोगे, तो आपको कैसे पता? सो किस्मत इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डिस्कस बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट. किस्मत इज समथिंग व्हिच यू कैन एनालाइज इन द हिंडसाइट. अच्छा ये था, इसलिए मैं 10 बार फेल हुआ था और अब 11वीं बार मैं एक ब्लॉकबस्टर बन के निकला हूं. वो जो किस्मत एक फैक्टर है ना, वो तुम्हारे अंदर विजडम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है. वो ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है कि देयर इज अ थर्ड पावर व्हिच इज ऑब्जर्विंग मी, व्हिच इज इंटेंशनली नॉट लेटिंग मी सक्सेस, सो दैट आई ग्रो इन द स्ट्रेंथ. Friends, I'm a mechanical engineer, I'm a production engineer. I give you one example of how strength gets enhanced in metal and the human being. Hammering सब लोग जानते हो, blacksmith सब लोग जानते हो. एक हथौड़ा होता है जिसको मेटल को जोर से मारा जाता है, तो मेटल के अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं वो एंटेंगल करते हैं, जिससे मेटल स्ट्रांग हो जाता है. This is what life is. I mean, the hammer of the life will fall on you. If you are a good metal, you'll grow strong. If you are brittle, you'll break. And entrepreneur is that metal which keeps on growing stronger by every hammer. This is how it goes. So जो मैंने आपको बताया कि whether you are cast iron or you are steel, वो genetic है. And entrepreneur is not cast iron. Entrepreneur is a steel. Why? Because life is going to hammer you. If you are cast iron, you will break and will go away. Very many people will come forward. Cast iron is also having very good strength. Cast iron भी बहुत strong है. Steel भी बहुत strong है. Only difference पता है क्या दोनों में? स्टील जब हैमर पड़ता है तो और स्ट्रांग हो जाता है, और जब कास्ट आयरन जब हैमर पड़ता है तो टूटना स्टार्ट हो जाता है. ये डिफरेंस है दोनों में. अदरवाइज एवरी मेटलर्जी फेलो विल टेल यू कि कास्ट आयरन का यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ये स्ट्रेंथ ज्यादा, वो स्ट्रेंथ ज्यादा. व्हाट व्हेन आई हैमर इट, नहीं सर फिर तो टूट जाएगा. और स्टील नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी. ये डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और कॉमन आदमी के अंदर. तो इस तरीके से आपको प्रोसीड आगे चलना पड़ेगा. सो ट्रेड्स अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर फेलियर. यू आर नॉट डिबेटेड बाय फेलियर. बचपन में एक आप वो सांप सीढ़ी गेम खेलते थे ना, उसमें क्या होता है, लूडो होती है. वो जब आप लूडो खेलते हो आप 99 पे पहुंचते हो, वहां एक सांप होता है. वो जैसे 99 पे सांप होता है तुम सीधे नीचे आ जाते हो. जस्ट ऑब्जर्व योर बिहेवियर. जब ऐसा होता है, जब तुम्हें सांप काटता है, अपना ऑब्जर्व करना बिहेवियर. अगर तो तुम हंसते हो कि व्हाट अ फन यार, खाली इसने मेरे को, देन यू आर एंटरप्रेन्योर. लेकिन अगर तुम फ्रस्ट्रेट होते हो, आई वाज सो क्लोज, मैं फेल हो गया, मेरे को अब नहीं खेलना, यू कैन नॉट बी एंटरप्रेन्योर. That summarizes the personality of entrepreneur. Now friends, I start my lecture. I'm asked to give a master class on plans and legal issues and ethical issues. Can we go next?
Now this all, I mean, I will be talking about what is right, what is wrong, all these things I'll be talking about. Next, please go. ये मैं जो एग्जांपल जितना भी दूंगा है 5 कंपनीज एज ऑफ नाउ व्हिच आर रनिंग. सम आर रेलेवेंट फॉर यू, सम आर नॉट रेलेवेंट. दीज टू आर एडटेक कंपनीज, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एजुकेशन. मैं सारे एग्जांपल्स आपके अपने ओन एक्सपीरियंस के बेस पे फ्रेंड्स दूंगा. कोई बुक्स मैंने आज तक नहीं पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का, ना तुम लोगों को कभी पढ़नी है. तुम्हें किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें अपनी ही स्टोरी से मिलेगा जो मिलेगा. और मैं भी अपनी स्टोरी ही तुम्हारे सामने रखूंगा, शायद तुम्हें उसका बेनिफिट हो जाए और तुम्हें पता लग जाए कि कैसे चीजें चलती हैं. नेक्स्ट, इसके 3 पार्ट हैं. जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप है इसके 3 पार्ट हैं. पहला व्हाई, बनना क्यों भाई एंटरप्रेन्योर, क्यों बैठे हो, क्यों जानना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में. दूसरा, अच्छा करना क्या है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, तो फिर करना क्या है. दूसरा क्वेश्चन आ गया, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो करना क्या है. तीसरा है, अच्छा करना कैसे है, क्या क्या चीज है, प्रोसेस क्या चीज है. कैन वी गो नेक्स्ट. आज का जो लेक्चर है जो मेरा वाई के ऊपर नहीं है, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है उसके ऊपर मेरा लेक्चर नहीं है. मेरे को ये बोला गया है कि कैसे करना है, आगे चलो. वाई बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग आंसर इन योर माइंड कि आपको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है. इसलिए नहीं कि बजवर्ड है, बहुत बजवर्ड है ये. दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, बोलोगे मैं एंटरप्रेन्योर हूं और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, 50-100 लोगों को मैंने जॉब दे रखी है, तो वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है. मैं बोल रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, पर वो आसान नहीं है. तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम बोल रहे हो ना मैं जॉब कर रहा हूं और तुम बोल रहे हो मैं जॉब दे रहा हूं, इनमें दिन रात का डिफरेंस है. 99% of the people will be doing jobs. They are in the jobs. They are getting salary from someone. Very less people are giving job to someone. लेकिन it is not easy. और जब मैं बोल रहा हूँ ना जॉब दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन से नहीं होता. एक जो शॉप चला रहा है आदमी वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना आप. अदर डे वन फेलो टोल्ड मी, यार मेरी दुकान है, मैं 2 एम्प्लॉय रखता हूँ, मेरा प्रॉफिट इतना है. ऐसा मैं 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, मेरा लॉस में चल रहा है. एंटरप्रेन्योर वो नहीं है, क्योंकि उसने 10 लाख कमाया, अपने घर 8 लाख ले गया, 2 लाख उसने एम्प्लॉइज को दे दिया. वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. एंटरप्रेन्योर तो भाई साहब जॉब्स देने के लिए पैदा हुआ है, बहुत ज्यादा बिजनेस चलाने के लिए, कुछ चीज को क्रिएट करने के लिए, दुकान चलाने के लिए. दुकान चलाना, बिजनेस चलाना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना. अदरवाइज अगर आप बोलो कि साहब मेरे फादर की दुकान है, मैं भी दुकानदार हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, नहीं, आई बेग टू डिफर. दैट इज नॉट दिस. स्केलेबिलिटी है उसमें, आप फैला रहे हो. आपका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, पैसा सेव करना. नहीं, एंटरप्रेन्योर का कभी पर्पस नहीं होता पैसा सेव करना. एंटरप्रेन्योर का पर्पस अगर कुछ है, जेब में पैसे तो उसको मार्केट में डाल दे, बैंक में मत डाल. एंटरप्रेन्योर की ये भी पर्सनैलिटी है. जेब में पैसे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, नहीं एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता, क्योंकि बेवकूफ है तू. 25 लाख की गाड़ी ले ली, 15 की लेता, 10 लाख बिजनेस में लगा देता, वो एंटरप्रेन्योर है. तो आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप का आप मीनिंग नहीं समझे ना, तो आप नहीं जा सकते उसके आगे. बहुत डिसिप्लिन चाहिए. एंटरप्रेन्योर को किसी भी चीज की कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होती है कि मैं हाई फाई गाड़ियां यूज करूं, हाई फाई मोबाइल यूज करूं, बहुत बड़ी गाड़ी यूज करूं और मैं पैसे सेव कर लूं, मैं घर के लिए प्रॉपर्टी ले लूं. वो एंटरप्रेन्योर नहीं है. वो टिपिकल एक ह्यूमन बीइंग है जो बाकी जन जैसा ही है. सेविंग कर रहा है, पैसा सेव कर रहा है, डर रहा है, पैसा सेव क्यों करूंगा मैं बैंक में, फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए, अच्छा प्रॉब्लम आ जाए, अच्छा डर रहे हो ना, एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते आप. और मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ऐसा करना बंद कर दो कि वन डॉक्टर विजेंद्र केम सर टोल्ड मी नॉट टू इन्वेस्ट, नॉट टू सेव मनी एंड स्पेंड मनी. आई एम नॉट सेइंग यू दैट. आप अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं, ढंग से समझना मैं जो बताने की ट्राई कर रहा हूं. एंटरप्रेन्योर को बहुत चीजों का चार्म नहीं होता. उसको ये होता है कि मनी इज अ रिसोर्स जिसको फ्लॉन्ट नहीं करना है. ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल फोन इसलिए ले रहा हूं, आईफोन, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखाना है मेरे पास आईफोन है या मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है. नहीं, उसको फ्लॉन्ट नहीं करना होता. वो जो भी कर रहा होता है उसका पर्पस होता है. वो जो भी कर रहा होता है उसका पर्पस होता है. अगर वो कोट भी डाल के आया है किस दिन, तो उसका पर्पस है कोट क्यों डाला है. ऐसा नहीं कि मैं सुंदर दिखूं, ऐसा कि जहां जा रहा है उस चीज की रिस्पेक्ट हो, कि मैं जहां प्रेजेंटेशन के लिए जा रहा हूं उस जगह की रिस्पेक्ट हो, एंड पीपल शुड थिंक हाँ वो तैयार होके आया हुआ है. ऐसे नहीं आ गया सवेरे मुंह उठा के, तैयार होके आया है. उसका पर्पस होता है और वो पर्पस के साथ ही तुम आगे जा सकते हो. सो दैट इज व्हाई यू वांट टू बिकम, दैट इज फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अलग होती है. तुम्हारा कुछ रीजन होना चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूं एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हो, आपका रीजन होना चाहिए. और मैं आपको प्रूव करके बता दूंगा कि 99% लोग एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों जाना चाहते हैं, उनका रीजन नहीं होता है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं बाद में. उनके पास रीजन नहीं होता. नंबर 2, क्या वो एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा. लेकिन उनके पास वो पता भी नहीं होता, उनको आइडिया भी नहीं होता कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट है. कैन वी गो नेक्स्ट नाउ. दूसरा है हाउ, कैसे बनना है. तीसरा है नेक्स्ट वी कैन. हाँ, 5 स्टेजेस हैं फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप की नॉर्मली. पहली स्टेज होता है आइडिया का आना, किसी आइडिया का आना. मेरी स्टोरी याद करो जो मैंने बताई आपको. पहले डीआरडी की नौकरी की, पहले बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर डीआरडी की नौकरी में गया, फिर डीआरडी के बाद फिर मैंने दूसरी नौकरी में गया. टिपिकली एम्प्लॉय थिंकिंग से मैं आगे चलता रहा.
मेरे को लगा शायद ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, चलता गया। आइडिया पीएचडी करने के बाद आइडिया आया कि नहीं यार मेरे को तो कुछ करना था, क्योंकि मैं ये बाकी कुछ कर ही नहीं सकता था, इसके ऊपर करना है। जब मेरे को एक गैप दिखा, मेरे को दिखा सोसाइटी में एक गैप है, एजुकेशन में एक गैप है और मैं उसके लिए बेस्ट हूं उस गैप को प्लग करने के लिए, तो मेरे को आइडिया आया कि मेरे को क्या करना है। तो पहला स्टेज होता है आइडिया। उससे भी पहले मैंने बताया कि करना क्यों है, आपको पता होना चाहिए व्हाई यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, वो उससे पहले है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया, अब करना क्या है सर, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का रीजन तो है, अब करना क्या है। वो आइडिया फ्रेंड्स आपको ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा कि एक दिन बैठे टेबल के ऊपर आइडिया आना स्टार्ट हो गया, नहीं। आइडिया आता है बहुत से हीट और प्रेशर के अंदर जाके। व्हेन यू आर इन द हीट, व्हेन यू आर इन द प्रेशर, तब आइडिया आता है। कंफर्ट जोन में आइडिया नहीं आता। अब इसका मीनिंग क्या है? ऑल ऑफ यू आर इन द कंफर्ट जोन एज ऑफ नो। आर यू इन द डेस्परेट स्टेट ऑफ योर लाइफ? नो। Are you frustrated? Lot of frustration in your life? No. Are you under some kind of stress, pressure from this side, that side? No. Ideas नहीं आता आपको। Ideas तब आना start होता है जब तुम बहुत ज़्यादा heat and pressure में हो। Somebody asked, you know, how this diamond is formed. Diamond is formed from the coal, but not every coal becomes diamond. Only that coal becomes diamond which is under tremendous heat and pressure of the geological pressure, and for many years it is there without any disturbance. वो कोयला diamond बनता है। किसी ने पूछा कि ऐसे तो बहुत से कोयले जो सेम डेप्थ पे पड़े हैं, सेम हीट एंड प्रेशर पे बने, एक भी यहां पड़ा है दूसरा भी यहां पड़ा है, दोनों डायमंड क्यों नहीं बन गए? तो साइंस ये बोलती है कि जो कोयला डायमंड बना उसको पूरे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ईयर तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, नॉट इवन सिस्मिक वेव। लेकिन जो कोयला रह गया उसको सिस्मिक वेव की डिस्टर्बेंस आ गई और वो नहीं बन पाया। इसका मीनिंग क्या है? आप एंटरप्रेन्योरशिप में गए, कितने साल लगे रहे? 5 साल, 6 साल, 7 साल, आपका दोस्त भी लगा रहा, आप सक्सेसफुल हो गए, वो नहीं हुआ। यू नो व्हाई? क्योंकि आपका दोस्त लगा तो 10 साल रहा, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि उस साथ में जब 10 साल लगा रहा, वो केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, क्या मैं सही जगह पहुंचा भी हूं कि नहीं, या मैं जॉब कर लूं, या मैं थोड़ा कमा लूं। आप वो कोयले थे जिसको किसी चीज ने डिस्टर्ब नहीं किया, सिंगल पॉइंटेड एक ही जगह पे लगा रहा और आप डायमंड बन गए, वो नहीं बना। दैट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड, सो यू नीड टू कीप ऑन पुशिंग इन दैट डायरेक्शन। एक ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको चले रहना पड़ेगा। आइडिएशन, उसके बाद प्लानिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन, उसके बाद उसको स्केल अप करना, बढ़ाना। मेरे को इस चीज के लिए बुलाया गया है कि प्लान कैसे करना है, लेकिन आइडिएशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन वी गो नेक्स्ट नाउ? यस, आइडिएशन, कहां से आइडिया आएगा, क्या करना है, नेक्स्ट वी कैन गो। ओके, आइडिएशन में ये 3 चीज देखना फ्रेंड्स, ये 3 चीज चेक करना किसी भी आइडिया के ऊपर। गूगल ये बोलता है कि जब भी मैं कोई नई चीज स्टार्ट करता हूं तो मैं ये 3 चीज चेक करता हूं, और अगर ये है तो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर, एंड दैट इज ट्रू। वो मैंने भी चेक किया, मैंने जितना अपना वेंचर स्टार्ट किए उनमें अगर ये 3 चीज है तो चल जाता है। पहला क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है सर? मार्केट में किसी चीज की डिमांड है लेकिन कोई सप्लाई नहीं कर रहा उसको। मार्केट में हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है लेकिन कोई सप्लाई नहीं कर रहा, तो क्या तुम सप्लाई कर सकते हो? कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर? हाँ, मैं सप्लाई कर सकता हूँ सर, मैं बेस्ट हूँ। ओके, डन। अच्छा, अगर तुम सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए तो क्या इसको स्केलेबल कर पाओगे बाद में? मतलब बहुत बड़ा बिजनेस बना पाओगे? बना पाएंगे। अभी मैं नीचे बैठा था प्रिंसिपल साहब के साथ, उन्होंने कुछ अपने बच्चों की स्टोरीज बताई, सक्सेसफुल कैसे हुए, यहीं से आइडियाज आया। फूड डिपार्टमेंट है आपका, उन्होंने हॉस्टल के बच्चों को खाना सप्लाई करना स्टार्ट किया। हॉस्टल के बच्चे हैं जिनको खाना अच्छा लगा, सप्लाई किया, बनाया, देना स्टार्ट किए। अब एक ट्रबल आई कि क्या तुम बहुत अच्छा खाना दे पाओगे? बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता, ठीक है, डन। मार्केट में अच्छा खाना नहीं है, अगर है भी तो महंगा है, तो बहुत अच्छा खाना हर कोई खाना चाहता है, डोर स्टेप पे हर कोई डिलीवरी चाहता है। क्या तुम बना पाओगे? बना पाएंगे। उस कॉस्ट में बना पाओगे? बना पाएंगे, डन। अब कितने बच्चों को दे पाओगे? एसडी कॉलेज के बच्चों को, पूरे चंडीगढ़ के लिए स्केलेबिलिटी है तुम्हारे पास? ऐसा तो ना हो ना कि तुम कॉलेज के अंदर ही हो, तुमने कॉलेज की मार्केट असेसमेंट कर ली कि मैं 100 बच्चों को दे पाऊंगा, लेकिन जब तुम कॉलेज से बाहर निकले तुम्हें लगा यार बाहर तो जंगल है पूरा, बाहर तो तुम्हारे से अच्छे शेयर बैठे हुए हैं, तुम्हें तो लगा कि तुम एसडी कॉलेज में बेस्ट दे रहे हो, लेकिन तुम स्केलेबल कर ही नहीं पाए क्योंकि बाहर तुमसे अच्छे लोग बैठे थे, तुम नहीं दे पाए, स्केलेबल नहीं था। तो वो बिजनेस जो बहुत अच्छा भी था वो एक छोटी सी जोन में रह जाएगा, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सब बिजनेस चलता कैसे? आइडिया कहां से आना चाहिए? नंबर 1, मार्केट में देखो, आसपास देखो, कोई चीज की डिमांड लग रही है, मार्केट में कोई चीज ऐसा लग रहा है तुम्हें जो इसकी रिक्वायरमेंट है, हाँ है, कोई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तुम दे सकते हो, दे सकते हैं, स्केलेबल है, स्केलेबल है। कोविड का एग्जांपल लेता हूं। कोविड में फ्रेंड्स क्या हुआ, बहुत से लोगों ने ये जो होते हैं ना आपके हैंड सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड ह्यूज, but unmindful of the fact that COVID is not going to stay long, and then people speculated कि जब कोविड नहीं भी होगा तब भी लोगों को आदत पड़ जाएगी और वो हैंड सैनिटाइज करेंगे। पड़ी आदत पड़ी हम लोगों को? नहीं।
वी अगेन बैक टू स्क्वायर वन, वी आर नॉट यूजिंग नाउ सैनिटाइजर। अब सोचो जिन्होंने सैनिटाइजर स्टार्ट कर दिए थे ये सोच के कि एक अब मैं बनाऊंगा फिर बिकता चला जाएगा, कोविड में बिका, 20 में बिका, 21 में बिका, 22 में कंपनी बंद, नहीं बिका बिकॉज वो डिमांड नहीं थी उस चीज की। ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों को लगा ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड आया सब ऑनलाइन एजुकेशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो गई, लोगों को लगा ऑनलाइन एजुकेशन इज द वे ऑफ द लाइफ। नो, इट हैज टू बी हाइब्रिड मॉडल। ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन होनी थी। जिन्होंने ये सोच लिया कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन ही रहेगा, ऑफलाइन कभी वापस नहीं आएगा, वो वापस आया क्योंकि लोगों को उसका वैल्यू लगा। नहीं यार, रिटेंशन नहीं होती, बच्चों को नहीं होती। आप ऑनलाइन एजुकेशन किसके लिए बना रहे हो? स्कूल बच्चे के लिए जो 10th से छोटा है, उसकी तो रिटेंशन नहीं है, उसको मॉनिटर कैसे करोगे? वो खेलेगा वहां पे, आप उसको पढ़ा रहे होंगे वो खेलने बैठा होगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर इंजीनियर्स के लिए बनानी है तो बना लो, क्योंकि वो बंदा रिटेन करेगा उसको, वो ऑफिस, वो आपके इंस्टीट्यूट ना जाके वो घर में कर सकता है, बड़ा है, मैच्योर है। आपको आइडिएशन करना पड़ता है। जो भी आप आइडिया ले रहे हो ना फ्रेंड, जैसे ऑनलाइन आया, कोविड वाज अपॉर्चुनिटी, पीपल से कोविड वाज एडवर्सिटी, बट आई टेल यू इट वाज अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे मार्केट में सारे कोविड के टाइम पे सब खुश हो गए होंगे, वो सब खुश हो गए होंगे कि अब आया हमारे पास स्कोप, अब आया हमारे पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एडवर्सिटी ही अपॉर्चुनिटी देती है तुम्हें। और ऐसे बहुत सी आपके पास ऑप्शंस आती हैं। तो दैट इज द थिंग, डिमांड देखो, सप्लाई देखो, स्केलेबिलिटी देखो और अपना पोटेंशियल देखो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वहां पे आइडिएशन स्टार्ट होता है। आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट, नाउ स्टार्टअप के प्लान क्या होते हैं? जब आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला आइडिया आ गया, अब स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप के प्लान क्या होते हैं? भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम। आपको मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है, बिजनेस मॉडल चाहिए होता है, मार्केटिंग चाहिए होता है, ये सारे थ्योरेटिकल टर्म्स हैं। मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या होता है। कैन वी गो नेक्स्ट नाउ? अब जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज क्या आती है भाई साहब? पार्टनर। पार्टनर की बात आती है। जब भी वेंचर स्टार्ट होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, या तो तुम्हारे पास पार्टनर है या तुम्हारा पार्टनर नहीं है। पहला क्वेश्चन, पार्टनर चाहिए क्यों? somebody told me partner is nonsense, partnership is nonsense, it is not required. Partnership is nonsense, it is not required, because when you become partner, then your partner and your compatibility, and business partner is like a life partner, you understand that? वो लाइफ पार्टनर की तरह होता है। कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए। अगर 19-20 का भी डिफरेंस है तो पार्टनरशिप नहीं चलता। आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, प्राइवेट लिमिटेड बनाया, उसमें आपने लिखा 50% का मैं और 50% का मेरा दोस्त। जब काम करने लगे तो आप तो 55, आप तो 50, आप तो 60% एफर्ट कर रहे हो, 40% एफर्ट कर रहा है। 60 और 40 में फर्क नहीं है। लेकिन जब तुम अपना डॉक्यूमेंट देखोगे, यार इसके शेयर 50, मेरे शेयर 50, मैं 60% एफर्ट कर रहा हूं, ये 40% एफर्ट कर रहा है, फ्रॉम देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, फ्रॉम देयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो मैं बोलने की ट्राई क्या कर रहा हूं कि पार्टनरशिप तब तक मत करना जब तक आपका स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो पार्टनरशिप को करने के। अदरवाइज 90% तक टाइम पार्टनरशिप फेल हो जाएगी, चलती नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपने कंपनीज के बेस पे बता रहा हूं। आई हैड मेनी फ्रेंड्स हु वर माय क्लोज फ्रेंड्स, आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, आई लॉस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, I blame them, they blame me, and friendship does not work. Does not work. Why? Because many reasons. You are active, he is lethargic. He is very genuine. You are risk oriented. The moment you are to spend 5 lakh rupees, he will say don't spend. You will spend. Personality अलग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप गलत हैं कि वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ कंपैटिबल नहीं है भाई साहब। आप डिवोर्स में तुम ब्लेम नहीं करते हो हस्बैंड वाइफ को, तुम बोलते हो कंपैटिबल नहीं थे। तो नहीं कंपैटिबल तो कैसे होगा? तो पार्टनरशिप इज लाइक दैट। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजन पार्टनरशिप क्यों होनी चाहिए। अच्छा सर, अगर अच्छी पार्टनरशिप हो तब बताओ। वंडरफुल, अच्छा स्पाउस हो तो वंडरफुल लाइफ चलती है, पर क्वेश्चन है अच्छा हो तो। एंड थिंक ऑफ अगर अच्छा ना हो। एंड बिजनेस के अंदर अच्छा होना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए पार्टनरशिप बहुत डिफिकल्टी से आपकी सस्टेन करती है, क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। वाइफ के साथ वो नहीं होते तुम्हारे। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी वाइफ तुम्हारी हेल्थ की भी चिंता करेगी, तुम्हारा पार्टनर नहीं करेगा। ओनली फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं वो। और फाइनेंस जहां पे आ जाता है फ्रेंड्स, वहां पे बहुत सी चीजें आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आता है। तुम सारा पैसा अपनी वाइफ के हाथ में रख देते हो, तुम पैसा अपने पार्टनर के हाथ में थोड़ी रखोगे। यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग? सो एक्चुअली लाइफ एंड बिजनेस पार्टनरशिप में डिफरेंसेस होते हैं, और बिजनेस पार्टनरशिप जिन चीजों के ऊपर बना होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं और टूटने का डर होता है। तो मेरी याद रख लेना, जब पार्टनरशिप के बारे में सोचो तो ये मत बोलना कि हम बचपन के दोस्त हैं इसलिए मैंने इसको बिजनेस पार्टनर बनाया, या ये सर मार्केटिंग में बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको बिजनेस पार्टनर बनाया, या ये बोल रहा है कि मैं 5 लाख रुपए लगा दूंगा मैंने बिजनेस पार्टनर बनाया। नहीं, मैं बाद में आपको बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा नहीं चाहिए, और अगर पैसा है भी तब भी तुम्हारे लिए वो डिसएडवांटेज है। अगर मैं आज 1 करोड़ रुपया तुम्हें दे दूं तो आई एम मेकिंग श्योर यू विल नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर। मैं बता रहा हूं तुम्हें यार, इंडियन स्टूडेंट्स का, इंडियन लोगों का ये है कि पार्टनरशिप, मेरे को जब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना है तो इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, ये टर्म्स यूज करते हैं। डोंट यूज दिस टर्म, यू डोंट नीड मनी।
And I think you are hearing this term first time from me. You don't need money for entrepreneurship. That is not required. And if you don't have money, that is the best way. Organic growth अभी डिस्कस करूंगा. तो पार्टनरशिप बड़े ध्यान से चूज करनी है. उसके पीछे रीजन होने चाहिए. पार्टनर अच्छा हो, पार्टनर से फायदा होता है, बिल्कुल होता है. लेकिन पार्टनर के साथ आगे चढ़ना डिफिकल्ट होता है. आप अगली स्टेज पे भी पार्टनर ला सकते हो. जितने जैसे आप मैं बोलूँ ना, स्कूल में आपने किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप पे शादी करेंगे बाद में, वो अच्छा डिसीजन है. या कॉलेज के बाद बोला मैं शादी करूंगा, वो अच्छा डिसीजन है. कि जब आपने जॉब में चले गए, आपने बोला शादी करूंगा, अच्छा डिसीजन है. आप अलग अलग स्टेज पे अपने लिए लाइफ पार्टनर देख सकते हो. स्कूल में हम 8वीं क्लास में थे, मैंने इस लड़के को बोला हम शादी करेंगे फ्यूचर में चलते. एक ये है. दूसरा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मैंने इस लड़की को बोला शादी करेंगे हम. तीसरा, जब मैं जॉब में था, मैंने इस लड़की को बोला हम शादी करेंगे. चौथा, जब मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैंने बोला हम शादी करेंगे. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, मैंने जब जॉब छोड़ दी और मैंने बोला हम शादी करेंगे, दैट इज गोइंग टू लास्ट द लॉन्ग. स्कूल वाली नहीं. तो पार्टनर किस स्टेज पे चूज करना है? जब तुम मैच्योर हो, जब तुम दुनिया देख चुके हो, जब तुम्हें सारी चीजों की समझ हो, तब आपको पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम. शुरू में अकेले चलो, गिरो. पार्टनर इसलिए नहीं होता कि जब तुम गिरोगे तो तुम्हें उठा ले. नहीं, गलत समझ रहे तुम. नहीं, क्योंकि तुम दोनों ही गिरते हो. उठाएगा कौन किसी को? खुद ही उठना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट दैट. अगर दो पार्टनर हो बिजनेस में, दोनों ही गिरेंगे. ऐसा नहीं कि मैं गिर गया तो उसने उठा दिया, मैं रो रहा हूं तो उसने कंधा दे दिया. नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है बिजनेस में. तुम दोनों को ही करना पड़ेगा. तो पार्टनरशिप सोच के करनी है. आगे चलें. फंडिंग, पैसा. भाई साहब कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? सर ठीक है. क्या चाहिए तुम्हें? सर पैसा. अरे नहीं यार, पैसा नहीं चाहिए तुम्हें. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट मनी. कोई दे भी तब भी मत लेना. कोई दे भी ना, तुम्हें ये पकड़ 5 करोड़ तेरे ऊपर लगाता हूं, बहुत कैपेबल है, डूब जाओगे. बहुत सी स्टोरीज हैं. बायजूस इज वन ऑफ देम. बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी. जैसे ही मैंने पैसा डाला ह्यूज, चलो फंड करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को. इंडियन क्रिकेट टीम सारा पैसा खा जाएगी तुम्हारा. तुम उसको मेन उसके एम्बेसडर बन गए, सारा पैसा वो खा जाएगी. तो कस्टमर को क्या दोगे? ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है वो. मेरा पैसा लगा 10,000 करोड़ दे दिए तुम्हें, डूब जाओगे. एक जब आपके साथ बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो आपको उसका खर्च करने का पता नहीं चलता. बहुत सी चीजें लूज कर जाते हो. जब पैसा नहीं होता ना, आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे होते हो. मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम हायरिंग समबडी. आपको नहीं लगता मैं पैसे के बारे में सोच के हायर करूंगा? ये 40,000 में मेरे को हायर करना है. अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो शायद मैं उसको बार्गेन करके, रिस्पेक्ट करके, रिक्वेस्ट करके 35,000 में हायर कर लूं. लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो वही आदमी जो मैं 35,000 में ले रहा हूं, उसको मैं 70,000 में ले रहा हूं. पहले दिन से इनएफिशिएंसी आ गई. मेरे को पैसा फेंक दो मेरी जेब में बहुत सा, एंड यू विल मेक श्योर आई विल नॉट लर्न द थिंग्स. मेरे को रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी. रिस्पेक्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि जब आपके पास पहली तारीख को सैलरी देने के लिए नहीं होती, तो अपने एम्प्लॉय से तुम कैसे बात करते हो, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है. लेकिन पहले ही तारीख तुम्हारे पास जेब में पैसा दबा के पड़ा हुआ, एम्प्लॉयज को तुम एरोगेंस से बात करोगे, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे. तुम जो पीएन है ना तुम्हारे ऑफिस में, जो ये बोलते हैं साहब कोई बात नहीं 2-4 दिन बाद सैलरी दे देना, तो वो पीएन और तुम्हारे अंदर जो रिलेशन डेवलप होता है ना फ्रेंड्स, वो कभी डेवलप नहीं होगा. पैसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास. अगर एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनना है, और एंटरप्रेन्योर अच्छा ह्यूमन बीइंग भी होता है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ. अदरवाइज वो अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है यार. और जब तुम एम्प्लॉयमेंट किसी को देते हो, तुम्हारे अंदर एरोगेंस आ जाता है. वो एरोगेंस को खत्म करने का तरीका ये है, तुम भिखारी होने चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए. और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है फिर भी तुम आगे गए हो, तब तुम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनोगे. जब हजारों लोगों को सैलरी दोगे, तो तुम्हें वो कल्चर डेवलप होगा. आज तुम टाटा, अंबानी, अदानी, ये 3 कंपनीज के अगर मैं नाम लूं, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है ब्रांड को लेके? यू नो दैट. क्योंकि टाटा started way back. The way they started, the way they grew, the way they did, that was entirely different. एक टाटा वो जिसने शादी नहीं की इसलिए क्योंकि उसकी कंपनी नहीं चलेगी अगर वो इस लड़की से शादी कर लेगा. और दूसरा अंबानी वो जिन्होंने प्री मैरिज के ऊपर ही 700 करोड़ खर्चा है. तो यू अंडरस्टैंड द थिंग्स. I'm not derogatory to anybody. I'm just giving you an idea. You just see the story of the Ratan Tata and you see the stories of other people. You will understand how it all evolved. Easy money, चाहे कोई तुम्हें देता है, चाहे तुम अनएथिकली लेते हो, चाहे तुम्हें किस्मत देती है, इजी मनी इज अ डिजास्टर. इट शुड नॉट कम टू यू. अदरवाइज तुम अच्छे ह्यूमन बीइंग कभी नहीं हो सकते. एंटरप्रेन्योर तो बात की बात है. तुम 2 चॉइस अगर मैं तुम्हें दूं, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहोगे कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे? अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने की ट्राई करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो नथिंग विल गो. एट द एंड ऑफ द डे ओनली थिंग वन थिंग विल बी, आपकी अपनी नजरों में तुम कैसे हो. आर यू बैड फॉर गाय, आर यू गुड गाय, बैड गाय, रिच गाय, पुअर गाय तो हो जाता है, बैड गाय, गुड गाय, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. तो आपके पास ये चीज नहीं होनी चाहिए. तो हाँ, ये एक मिथ कि मेरे को पैसा चाहिए. आगे चलें. इन्वेस्टर अगर आए और बोले मैं तेरे ऊपर पैसे लगा देता हूं, उसको बोलो ना, क्योंकि जिस चीज से तुम भाग रहे हो वो तुम्हें उसी में एनस्लेव करेगा. तुम जॉब से क्यों भागे थे?
क्योंकि तुम अपने हिसाब से काम चलाना चाहते हो, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि डीआरडीओ तुम्हें बोले मैं एक टेस्ट रिग बनाऊं, तुम ये काम करो, जनरल इलेक्ट्रिकल तुम्हें बोले ये काम करो। तुम एम्प्लॉय क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें बोले और तुम वैसा करो, तुम चाहते थे कि तुम अपने हिसाब से चलो, यही तो चाहते थे। अब ये देखो, दिस गाय विल मेक योर लाइफ हेल बिकॉज ही हैज गिवन यू 5 crore. Now he is asking you every day, what are you doing? Why you are doing that? How you are doing it? He is controlling you day and night. And this is the biggest form of slavery. Investor, जिसने आपको पैसा दे दिया ना, वो आपको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करेगा। तो आपके पास इन्वेस्टर नहीं आए भी तो मत पकड़ो उसको। तो इसका मतलब सर कभी इन्वेस्टर नहीं पकड़ना होता, बिल्कुल पकड़ना होता है जब ऐसा लगे कि ये हाथ जोड़ के तुम्हारे पास आए। अगर ये हाथ जोड़ के तुम्हारे पास आ रहा है तो पकड़ लो आपकी कंडीशंस पे। तब तक तुम काफी लर्न कर चुके होंगे, तभी आएगा वो हाथ जोड़ के। क्यों आएगा कोई हाथ जोड़ के सर पैसा ले लो मेरे से? क्यों आएगा? सोच के देखो, क्योंकि तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम ऑलरेडी वो चीजें सीख चुके हो। लेकिन शुरू में तुम हाथ जोड़ के उसके बाद सर पैसा दे दो। अगर उसने दे भी दिया तो तुम अनसेव हो। तो भाई साहब, इन्वेस्टर तब पकड़ो जो हाथ जोड़ के पैसा लेने आ जाए, तब मत पकड़ो कि तुम उसके पास हाथ जोड़ के चले गए सर मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो। अगर उसने दे भी दी तो तुम फ्रीली काम नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जितने पॉइंट्स तुम्हें बता रहा हूं ना, किसी बुक्स में नहीं है, कहीं पे नहीं है, ये खुद फेल्ट की हुई चीजें हैं। और आप जब इसमें आगे जाओगे इसको जरूर सोचना कि ये बोला गया था, इसका इंपैक्ट क्या था। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, नॉन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ और नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब है, I'll give you another example. You know, when a child is born, any cesarean doctor will tell you. I mean, my close friend is this gynecologist. I tell him there are two kind of ways. I mean, या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है आपकी। तो कौन सी डॉक्टर अच्छी है? बोलता है यार नॉर्मल अच्छी है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो आजकल सिजेरियन, तो हर किसी को सिजेरियन बोलता है। बोलता है उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि हर लेडी जो आएगी या जो उसके फैमिली मेंबर होंगे बोलेंगे नो, वी डोंट वांट पेन, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हैसल, वी वांट पेनलेस, वी वांट वेरी स्मूथ। नेक्स्ट, सिजेरियन की ज्यादा फीस है, दैट इज हिज बिजनेस पार्ट। मैंने बोला अच्छी कौन सी? बोला भाई अच्छी तो नॉर्मल है, अच्छी तो नॉर्मल है बिकॉज द मोमेंट, वो याद करो मेटल की हैमरिंग, द मोमेंट नॉर्मल डिलीवरी इज देयर, योर बॉडी विल एक्चुअली डेवलप द स्ट्रेंथ एंड लेटर स्टेज पे दैट इज ऑलवेज गुड। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन नहीं, इंड्यूस नहीं। वैसे ही आपका बिजनेस नॉर्मल ग्रो करना चाहिए, इंड्यूस नहीं। पापा ने पैसे रख दिए, किसी और ने पैसे रख दिए, इनऑर्गेनिकली तुम ग्रो कर गए, नहीं। अगर तुमने वैसा किया तो बड़ी मछली तुम्हें किसी ना किसी स्टेज पे खा जाएगी। तुम ऑर्गेनिकली ग्रो करोगे, तुम बहुत स्ट्रांग होगे और तुम आगे चलते जाओगे। नेक्स्ट मेरा फेवरेट है, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मेरा फेवरेट है। ये वाली जो स्लाइड है, प्लीज गो नेक्स्ट, ये मेरी फेवरेट है। ये चाइनीज है, एक बैम्बू ट्री देखा तुम लोगों ने? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है बैम्बू ट्री की। तुम इसका बीज लगाते हो ना, तो बीज लगाने के बाद तुमने इसका बीज लगा दिया, उसके कई साल तक पानी देना पड़ता है। पहले साल पानी दिया कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल पानी दिया कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल पानी दिया कुछ नहीं दिखता, 4, 5, 6 साल पानी देते रहे, कुछ बाहर नहीं आया। और अचानक क्या हुआ, एक दिन वो इतना ग्रो करना स्टार्ट कर दिया कि 6 वीक के अंदर 80 फीट ग्रो कर गया। 6 वीक, 1.5 महीने में, 5 साल में बाहर तक नहीं आया और 1.5 महीने में इतना ग्रो कर गया। ये क्या सिखाती है स्टोरी हमें? एक्चुअली आप अगर उसका दूसरा साइड देखो, जब आप बैम्बू ट्री को पानी दे रहे थे तो वो ऊपर तो नहीं जा रहा था, लेकिन नीचे की तरफ ग्रो कर रहा था, फाउंडेशन बना रहा था। 5-6 साल उसने फाउंडेशन बनाया, और जब उसकी फाउंडेशन बन गई तो इतना स्ट्रांग था वो कि जैसे ही वो आपका एक टाइम आया तो अचानक ग्रो कर गया बहुत ज्यादा। एंड यू नो, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनिक ग्रोथ इज लाइक दैट। आप मेहनत करोगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, 10 साल से मेहनत की, कुछ नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं आया। तुम बोलो क्या कर रहा हूं यार, टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तुम समझो आप ग्रो कर रहे हो किस डायरेक्शन में, आपकी बेस बन रहा है, आप स्ट्रांग हो रहे हो, क्योंकि आप फेलियर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। एक दिन आएगा फ्रेंड्स, जब आप ग्रो करना स्टार्ट करोगे तो सडनली तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे किस्मत इसकी चढ़ गई, ये ऊपर चला गया। किस्मत नहीं चढ़ी, बैम्बू की किस्मत चढ़ी क्या? वो इतने साल से तो ऊपर नहीं आया, बेचारे को पानी दे रहे हो, किस्मत थोड़ी, एफर्ट है इतने साल का। ये है ऑर्गेनिक ग्रोथ। हमेशा इस ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाओ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टाइम लिमिट, बर्न द बोट। सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप में कूदने को तैयार हूं, सब कुछ सही है, मैंने स्टार्ट कर दिया, धंधा पानी स्टार्ट कर दिया, मैं एंटर कर गया, अब मेरे को कितने साल तक एफर्ट करना चाहिए? 2 साल 3 साल मैंने अपने लिए लिए। ये सिविल सर्विस की तैयारी नहीं है, सिविल सर्विस एग्जाम नहीं है कि मैंने यूपीएससी 3 साल लिखना, अगर हुआ तो हुआ, 32 साल तक मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ये नहीं है सिविल सर्विस का एग्जाम।
आपको क्या अपना कोई टाइम लिमिट रखना चाहिए? आंसर है नहीं। ट्रू एंटरप्रेन्योर कोई टाइम लिमिट नहीं लगता। एक स्टोरी होती है बर्न योर बोट। अगर आपने कोई आइलैंड को कैप्चर करना है ना, आप कोई आइलैंड पे कैप्चर करने के बोट लेके गए, तो जैसे उस आइलैंड पे आप उतरे, आप अपनी बोट को आग लगा दो। उससे क्या होगा? बोट को जब तुमने आग लगा दी, अब यू आर श्योर कि मैं वापस नहीं जा सकता भाई साहब, अब मेरे को यहीं पे सर्वाइव करना है और थ्राइव करना है। अगर आपने बोट रखी कि भाई जब भागना पड़ेगा आइलैंड से तो बोट को तैयार रखो, हम भागेंगे, तो आप कभी एफर्ट नहीं कर सकते। प्लान बी होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक प्लान बी। अगर तुमने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रखा है तो तुम 100% अपना दे ही नहीं सकते। तभी आदमी अपना 100% दे सकता है जब उसके पास कोई प्लान नहीं है, तो उसके पास बर्निंग द बोट है। इफ यू वांट टू कैप्चर द आइलैंड, बर्न योर बोट्स फ्रेंड्स, नो टाइम लिमिट, बर्न योर बोट, कि अब जो करना है यही करना है, इसी में से मेरे को निकालना है भाई, क्लियर हो गया, इधर उधर देखना नहीं है। नेक्स्ट, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, आपने गुरु भाई मूवी देखी होगी, इसका ये सीन देखना जरा ध्यान से। ये जो लड़का है गुरु भाई, जो धीरू भाई अंबानी की डिपिक्शन है आई थिंक, ये इस मूवी का ध्यान से देखना। और आप एक चीज और ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स, जब आईएएस बनते हो, जब आप कोई एग्जाम निकालते हो, बहुत अच्छा राइज कर जाते हो, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आप ये बोलते हो आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल टू माय सिस्टर, ब्रदर, माय फ्रेंड्स एंड ऑल, थैंकफुल। किसी एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेके देखना, ही विल नेवर थैंक हिज पेरेंट्स एंड हिज रिलेटिव्स। नथिंग अगेंस्ट माय पेरेंट्स, आई लव माय पेरेंट्स फ्रेंड्स, आई नेवर थैंक, आई नेवर थैंक देम। Don't take it, don't misunderstand it, but because they were not there with you. ये बहुत ही और बात है। ये बंदा इसको बोल रहा है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। सीन देखना, इसको घड़ी देता है पहले, वो तो मैं तेरे लिए घड़ी लाया हूँ, तो बहुत अच्छा है, अब वापस कब जा रहा है? तो मैं नहीं जा रहा वापस, अब मैं अब जा नहीं रहा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। धीरू भाई की स्टोरी ये है, गुरु भाई मूवी देखना। घड़ी वापस देता है, वो तो भाड़ में जा, ये घड़ी रख ले, जब बुरा टाइम आएगा तो देखने का काम आएगी। He is not supporting, his father is not supporting. ये वो सीन है, nobody will be there with you, not even family. सपोर्ट नहीं करता कोई, तो आपको उसके लिए, लेकिन इसका मतलब आप अपने फादर या पेरेंट्स या दूसरों से आप डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर दो, नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप विल मेक यू अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जिसको अगर कोई थप्पड़ भी मारेगा तो उसका एनालिसिस करेगा, उसको माइंड नहीं करेगा, एनालिसिस करेगा। ही इज नॉट अ बैड गाय, ही इज नेवर अ बैड गाय, ही इज द बेस्ट गाय अराउंड, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ही विल गो टू हिज फादर वन डे एंड टेल नो आई एम अ सक्सेसफुल फादर। फिर फादर बोलेगा नहीं मैं समझ नहीं पाया, गलती हो, सो ओके आई वाज नोइंग इट, डोंट वरी। ही इज दैट काइंड ऑफ गाय, ही इज दैट काइंड ऑफ गाय। अदरवाइज उसको हमेशा सुनने को मिलेगा मैंने तेरे को बोला था मत कर, मैंने तेरे को बोला था, क्यों किया, नहीं होता, नहीं होगा, चलता जाएगा, और ऐसा बहुत साल तक चलता है। फादर ही नहीं, सब बोलेंगे, ये समझ लो। नो सपोर्ट, यू आर अलोन इन दिस फाइट, अलोन। पार्टनर भी साथ नहीं, लाइफ पार्टनर भी साथ नहीं, पेरेंट्स भी साथ नहीं, कोई नहीं होता, और आपको अकेले चलना पड़ता है। नेक्स्ट, फेलियर। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फेलियर। यू लव दिस? डू यू लव फेलियर्स? डू यू लव इट आउट? डू यू लाइक द फेलियर्स? और इट गिव्स यू नाइटमेयर्स? अगर दिस गिव्स यू नाइटमेयर्स फ्रेंड्स, इट इज नॉट द डोमेन फॉर यू। हाँ, फिर मत जाओ एंटरप्रेन्योरशिप में। फेलियर कैसी लगती है? तुमने अपना याद करो, लाइफ में फेलियर हैंडल किया है, नंबर नहीं आया, स्कूल में किसी ने कुछ बोल दिया, आप जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, तो हाउ यू रिएक्टेड? आपने कैसे रिएक्ट किया उसको? डिड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड वेंट फॉरवर्ड? या तुम उस पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, आप ताश खेलने लगे, आपको पत्ते अच्छे नहीं मिले, दूसरे को अच्छे पत्ते मिले और फ्रस्ट्रेट हो गए, यार मेरे को कभी अच्छे पत्ते नहीं मिलते, लूडो खेलने लगे, हार गए, आप आउट हो गए, गलती से आउट हो गए, हाउ डू यू रिएक्ट? अगर आपकी रिएक्शन है ना फ्रस्ट्रेशन, तो आप नहीं बने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट फेलियर। लेट मी डिफाइन दिस वे, failure, success. Is this end of the game? No. Then again failure, again success. Again failure, again success. Life is full of failures and successes for entrepreneur. So does that mean, sir, I will keep on failing and then one day I will be successful and that's it? Happy ending? There is no ending. Actually there is not. It's a roller coaster. और आप इसी में थ्रिल अगर ले सकते हो तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, ओके, सो लीगल और एथिकल। मेरे को लगता है इस क्लास में लीगल और एथिकल को समझाने के लिए ये आपका जो है, इसमें बहुत मेरे को टाइम लगेगा, लेकिन मैं सिंपल ट्राई करने की बात करता हूँ। एंड बाय द वे, आई एम अ मेंटर, आई एम अ टीचर ऑफ एथिक्स आल्सो, बिजनेस एंड एथिक्स का मैं टीचर हूँ। लीगल और एथिक्स क्या होता है? कोई ऐसा काम करो जिसमें तुमने लॉ तोड़ दिया, वो इलीगल है, वो लीगल पार्ट है। तुमने कोई रूल तोड़ दिया, तुमने कोई
लाइसेंस ब्रीच कर दिया, तुम सड़क पे जा रहे हो, और तुमने क्या किया, तुमने पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रही है और तुमसे राइट पास मांग रही है, तुमने उसको राइट पास नहीं दे रहे हो, वो अनएथिकल है। तुमने रूल ब्रेक कर दिया, रेड लाइट ब्रेक कर दी, वो इलीगल है, वो लॉ ब्रेक कर दिया तुमने। लॉ ब्रेक करना और एथिक्स ब्रेक करना ये दो अलग चीज है। ये तुम्हारा बिहेवियर है, ये तुम्हारा बिहेवियर है लोगों के साथ, ये तुम्हारा लॉ को अवॉइड करने का पार्ट है। एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट। पहला एग्जांपल, ट्रांसपेरेंसी। जब तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, पैसे को ट्रांसपेरेंट रखो, एथिकल है ये। अपने और अपने पार्टनर के बीच में पैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होता है जब पैसा आना स्टार्ट होता है, तुम बोलते हो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना, कैश में देते हैं। कस्टमर आता है, बोलता है कैश में दे दें, हाँ दे दे, कैश में आ गया, सेव कर लूंगा, आगे नहीं दूंगा। अगर तुम गलत करोगे, तुम्हारे आसपास के सारे लोग गलत करेंगे। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। स्टार्टेड द इंस्टीट्यूट लॉन्ग बैक, मनी स्टार्टेड कमिंग, उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन नहीं था, मनी स्टार्टेड कमिंग इन कैश, लॉट ऑफ मनी। तो मैंने जो अकाउंटेंट रखा था, मैंने उसको बोला कि अगर कोई आए और बोले कैश में दे या चेक में दे, तो तुम कैश में ले लो। क्यों? टैक्स नहीं देना पड़ेगा, राइट? टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। आफ्टर 3 months आई रियलाइज्ड कि द अकाउंटेंट टू whom I told this, he learned something from me, and हर बार जब वो कैश लेता था, कुछ पैसे अपने जेब में डाल लेता था, कुछ पैसे अपने जेब में डाल लेता। Then it became very big, उसने बताना बंद कर दिया, it became very big. Then when he was caught and I asked him why it happened, उन्होंने सर आप भी तो वही कर रहे हो। And friends, that was the first learning I had in ethics, कि वो बंदा, जब मैं अनएथिकल हूं तो वो भी अनएथिकल होगा। सोचो मैं बोलता नहीं भाई मेरे को चेक में चाहिए, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे देंगे, तो क्या वो हेराफेरी कर पाता? वो अपनी सैलरी लेके जाता, चेक में लेके जाता, मैं चेक से सारा बिजनेस अच्छा करता। तो पहला ये आता है, अनएथिकल मत होना। रिस्क लेना अलग चीज है, अनएथिकल होना अलग चीज है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि तुम रेड लाइट जंप करने को मैंने तुम्हें बोला, नहीं, उसको रिस्क नहीं बोलते, वो तो इलीगल है। मैंने रिस्क लेने का बोला कि हाँ लो लाइफ में रिस्क, पैसा तुम्हारे पास 5 लाख है, डूब गया तो हो गया, उसको रिस्क बोलते हैं। इलीगल थोड़ा, तुम्हारा पैसा है, तुमने खर्च दिया, नहीं हुआ, बिजनेस नहीं चला, ठीक है, लेकिन अनएथिकल मत हो ना। अनएथिकल मतलब कि जो तुम्हें चेक में लेके गवर्नमेंट को देना चाहिए, तुम चेक में ले रहे हो, गवर्नमेंट तुम्हें बोल रही है 20 लाख तक तुम्हें देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन तुम कैश में ले रहे हो, कैश में ले रहे हो सो दैट तुम्हें कुछ बेनिफिट हो जाए, तुम्हारा सारा सिस्टम, सारा कल्चर शुरू से खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफेयर मत करना। कंपटीटर को डिफीट करने के लिए कुछ गलत कर दिया, आई नो, आई मीन पुलिस स्टेशन पे अपने कंपटीटर का तरफ से कुछ चिपका के आ गए और पुलिस तुम्हारे कंपटीटर को पकड़ ले, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, डोंट डू दैट। कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करना, वही करना जो फेयर है, जो एथिकल है। नेक्स्ट, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सुनिए ना तुमने स्टेट में सलमान खान की मूवी, एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी नहीं सुनता। यू अंडरस्टैंड, कमिटमेंट एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी तुम किसी से कमिटमेंट करो उसको फुलफिल करो, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाएगी, उससे लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आएगा। तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाओगे जिससे तुम्हारे सप्लायर, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर, तुम्हारे वेंडर, तुम्हारे बाकी बिजनेस पार्टनर्स तुम्हें ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ ये वो बंदा है जो बोलेगा तो करेगा। उससे तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर तुमने ट्रस्ट एक बार लूज कर दिया तो खत्म, देन इट इज ओवर। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, गवर्नमेंट स्कूल में एक लाइन लिखी होती थी, समझ अब आती है, दैट इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, if health is lost something is lost, but if character is lost everything is lost friends, and trust is a character। अगर मेरे साथ वाले लोगों को मेरे करेक्टर या ट्रस्ट खत्म हो जाए मेरे ऊपर, I lost everything, मेरी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये साथ में शुरू से रखो, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाओ, नहीं तो तुम बिजनेस चला ही नहीं सकते आगे। नेक्स्ट, प्रॉमिस किया है कभी मत तोड़ना, नेवर ब्रेक द प्रोमिसेस अगर आपने किसी से किए हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसकी कब तुम्हें दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ जाए और तुम उसको पुल ना कर पाओ। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल हो क्या? आप डिसीजन लेने के आगे खड़े होते हो, लीडरशिप हो। हाँ मैंने बोला था, मैं नहीं कर पाया भाई साहब, मैं करूंगा, यस आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अकाउंटेबल हूं, कस्टमर के लिए भी, वेंडर के लिए भी, सप्लायर के लिए भी, बाकियों के लिए भी। लीडरशिप रोल एक्वायर करो। ये किसने किया? ये कमरे में गलत किसने किया? टीचर ने आके पूछा, डर गए, टीचर जेल में थोड़ी भेज देगा, डर गए। ये किसने फेंका पेपर? सॉरी सर मेरे से गिर गया, मैंने फेंक दिया। बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ये है लीडरशिप।
ये है लीडरशिप। लो ना बोल्डली बोलो मैंने किया, तो डर क्यों रहे हो, छुप रहे हो, बैठ रहे हो, कर रहे हो, नहीं, आपको बोल्डली होके आगे आना पड़ेगा। हाँ मैं हूं, मैंने किया, बताओ भाई साहब ये मेरे लोग हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं, आप बताओ जो बोलना है मेरे को बोलो, इनको नहीं, तो अकाउंटेबल। नेक्स्ट, क्रिएट अ कल्चर। शुरू से कल्चर कब इंस्टीट्यूट में क्रिएट होता है, जब 200 लोग आ जाते हैं, 500 हो जाते हैं, या जब 2 लोग होते हैं। कल्चर शुरू से होता है। कल्चर तुम्हें शुरू से रखना है, रेस्पेक्ट का कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जितने मैंने टर्म्स बताए, पहले दिन से तुम्हें ये कल्चर का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन बाद में वैसी बनती है। जैसे तुम हो ऑर्गेनाइजेशन वैसी है। अगर तुम चोर हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी चोर बनेगी, अगर तुम अच्छे हो, जेन्युइन हो, तो ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन बनेगी। टाटा, आई टोल्ड यू, व्हाट कम्स टू द माइंड व्हेन यू से टाटा, बिकॉज़ दे वर लाइक दैट। आप स्टोरी पढ़ के देख लो, जेआरडी टाटा से स्टार्ट करो, रतन टाटा तक, उन सबकी लाइफ पढ़ो, you will understand the kind of compromises they have done. At Ratan Tata, somebody asked, why you did not marry? He said, every time I thought of marrying, I compared my family life with the organization. Is my marriage going to help my organization? Or is it going to create some trouble? And I got to know that it is going to create trouble. So I never married. वो करेक्टर तो शुरू से डेवलप होता है, चाहे बहुत छोटे से तुम्हें वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लीगल इश्यूज क्या होते हैं? जीएसटी नहीं पे किया, अब पहले मैंने बता दी, तुमने एक नहीं किया, तुमने किसी को सैलरी नहीं दी, तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय है, तुम उसकी सैलरी नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम उसको 6,000 भी दोगे, उसको काम करना पड़ेगा, पीएन है, उसको कई 6,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम उसको 10,000 क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम बताओ घर नहीं चला सकता 10,000 से कम। अगर तुम 6,000 से भी कम कर रहे हो तो अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, जेल थोड़ी हो जाएगी। मैंने एम्प्लॉय रखा है, मैं 6,000 दूं, 5,000 दूं, गवर्नमेंट थोड़ी कुछ बोल रही है, मैं तो उसको कितना भी कम दूं, वो बेचारे के पास जॉब नहीं है, वो तो करेगा, तो वो अनएथिकल है। तुमने जीएसटी ही पे नहीं किया, भाई तुम्हें गवर्नमेंट पकड़ लेगी, इलीगल है, छुपा रहे हो, जीएसटी नंबर नहीं लिया तुमने, 20 लाख से ऊपर का बिजनेस कर रहे हो, वो इलीगल है, ये गवर्नमेंट पकड़ लेगी तुम्हें। पहले एथिक्स की बात आई, बिहेवियर की बात आई, अब लॉ की बात आई। तुमसे को पूछ ले अनएथिकल प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दो, इलीगल प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए साहब जीएसटी ना पे करना इलीगल है, वो अनएथिकल नहीं है। वो कमिश्नर ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब क्यों नहीं दिया, ये क्या, वो बोलेगा चल अंदर, तुम्हारा नंबर कैंसिल, वो कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, इलीगल है। नेक्स्ट चलो, अनफेयर प्रैक्टिस, कोई भी टैक्स नहीं दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दी, जो तुम देखते हो ना लोग चले जाते हैं अंदर, जेल में चले जाते हैं, इलीगल हो सारा, ये तुम देखते हो हवाला से पैसा आ गया, ये वो हो गया। कभी शॉर्ट गेन के लिए गलत काम मत करना, वहीं पे खत्म हो जाओगे, वहीं पे बिजनेस खत्म हो जाएगा, वहीं पे ग्रोथ खत्म हो जाएगी। जब तुम में लालच आ गया किसी भी चीज का कि मैं शॉर्ट टर्म में लालच कर रहा हूं, भाई तभी खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, और ये तुमने शुरू में डिस्कस किया था कि पैसे के लिए हम एंटर नहीं किए थे, कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिए तुमने, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा था, तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे, इलीगल है, पहुंच जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये लिखा था, तुमने ये चीज बोली थी, अब तुम कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट, चेक बाउंस हो गया, भाई साहब मेरे पैसे नहीं दे रहे, ले भाई साहब चेक ले जाओ यार, ये चेक ले जाओ, अगले महीने का है, अगले महीने गया बैंक में पैसा नहीं है, इलीगल है ये, वो तुम्हें जेल में भी डलवा सकता है, चेक बाउंस हो गया। ये एक्चुअल में जो चीजें होती हैं जब तुम एंटरप्रेन्योर बनते हो ना, तुम्हारा पैसा नहीं होता, तो फिर सर पैसा नहीं तो क्या बोलना यार, रेस्पेक्ट उसको रिक्वेस्ट करो, बोलो भाई साहब मेरे पैसे नहीं है, रिक्वेस्ट करो, यही तो तुम्हें सीखना है, और क्या सीखना है। तो क्या तुम्हारे पास जब पैसा नहीं होता है तो लोग तुम्हें जबरदस्ती कर लेंगे? अगर तुम अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, अगर तुम कमिटमेंट वाले लोग हो, तो हर कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी परसेप्शन ही ऐसी बनेगी, पैसे नहीं देता आदमी, ये मार्केट में ऐसा फेमस हो गया, पैसे नहीं देता। ये पैसे ना होना तुम्हारे पास गलत बात नहीं है, लेकिन कमिटमेंट पूरी ना करना, अपने पैसे ना देना, वो गलत बात है। पैसे ना होने का वेरी वेरी नॉर्मल थिंग। एंटरप्रेन्योर तो छोड़ो, एम्प्लॉय जो लोग होते हैं उनके पास भी कई बार पैसे नहीं होते हैं ना यार, अब नहीं है पैसे आपके पास, क्या करोगे? तो जान ले लोगे, पैसे नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं है मेरे पास, मैं दे दूंगा। तो जब तूने लाइन बोली मैं दे दूंगा, अगला आदमी उसको ट्रस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो तुमने कमा लिया, तो तुमने आदमी कमा लिया। ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर आज तक नहीं देखा जो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है, ऐसा कोई नहीं जो नहीं बोले मेरे पास नहीं है। हर किसी के पास पैसा तो रिसोर्स है। मेरे पास अच्छे आदमी नहीं है, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी, ये 100% आएगी, उतवानी है तुम्हारे पास। लेकिन पैसा नहीं है इज नॉट इशू, पैसा है फिर तुम नहीं दे रहे हो, दैट इज इशू। ये बात, ये काम गलत है। नेक्स्ट, टैक्स कंप्लायंस नहीं किया। कई तरह के टैक्स होते हैं, तुम सीए कई चीज तुम्हें बोलता है, तुम सीए बोलता है साहब मेरे पैसे बचा दो, गलती कर दो लेकिन कर दो, नहीं, सीए बोलेगा तुम्हें सलाह देगा मत करो ऐसा। अब सीए बोलेगा देखो भाई साहब ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाए। डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब मेरे को ये करो, डॉक्टर तुम्हें अच्छी सलाह भी देगा। मैंने बताया नॉर्मल डिलीवरी करना है या सिजेरियन करना है, डॉक्टर बोले देखो नॉर्मल तो अच्छी है, पेन होगी बहुत, तो आपको जो ठीक लगता है डॉक्टर साहब वो बताओ। वैसे सीए आपको जो ठीक लगता है वो बताओ, देखो देना तो पड़ेगा पैसा,
देना पड़ेगा, तुम्हारा इनकम कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन सही तरीका तो यही है, तो सही फॉलो करो। नेक्स्ट, मेरा प्रेजेंटेशन हो गया खत्म ऑन इन दिस स्लाइड। एंटरप्रेन्योरशिप इज रोलर कोस्टर राइड, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। ये देखो ध्यान से, ये है लाइफ एंटरप्रेन्योर की। नॉर्मल आदमी की लाइफ होती है फेलियर फेलियर फेलियर, फिर एक दिन सक्सेस, फिर एक प्लेटू आ गया, बस। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए। तो इसका मतलब लाइफ में तुम्हें नीचे जाने का एक स्टेज के बाद फन आता है। जब तुम रोलर कोस्टर में जाते हो, सब जानते हैं कि नीचे उतरने में जितना मजा है, ऊपर चढ़ने में मजा नहीं आता। ऊपर जाने में आपको किक नहीं मिलती जितना नीचे आने में किक मिलती है। और एंटरप्रेन्योर की लाइफ में वही है कि जब तुम बैड फेज से जा रहे हो और अगर तुम थ्रिल फील कर रहे हो तो तुम एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन अगर बैड फेज में जाते टाइम तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो तुम एंटरप्रेन्योर नहीं हो। आई कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। नाउ आई विल अप्रिशिएट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू गिव द आंसर टू यू। एंड आई थिंक आई हैव नॉट टेकन मच टाइम, or have I taken much time? Oh, 11:30. I took a lot of time. Any question if you have friends? The best part is interactive session. और एक कॉमन स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स का लेक्चर नहीं था, ये एंटरप्रेन्योर्स का था। तो एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रियली गुड क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव? या नो हेजिटेशन, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो बाद में कुछ बच्चे आते हैं क्वेश्चन पूछने, और उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन सबके सामने पूछे, सो दैट आंसर सबके सामने आए। तो अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, दिस इज द टाइम यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, राइट? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, you can ask me, raise your hand and you can ask me a question. Any question? It can't be that questions are not coming to your mind. एंटरप्रेन्योर की एक और सबसे बड़ी पर्सनैलिटी ट्रेट बता रहा हूँ, उसको हेजिटेशन नहीं होता, उसको शर्म नहीं होती. He is a shameless guy in a positive way. He is a shameless guy in the full 1,000 people he can stand and ask a question. That is also entrepreneurship trait. No? So ma'am, then we ended up. We ended up the session. Okay, friends, thanks a lot for your time, and I enjoyed the session. Thank you. Thank you, sir. Your remarks have left a lasting impact on us. So now everybody is requested to gear up for a pitch deck workshop and keep your laptops handy.